So friends, now model number 8 असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। और असाइनमेंट प्रॉब्लम से हमेशा एग्जाम में एक कंपलसरी क्वेश्चन 7 मार्क्स तक का आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, राइट। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो सब मैंने यहाँ पर ऐड किया हूँ विथ देयर वन लाइन मीनिंग, applicability, importance, and the formula involved. Okay, so let's start with serial number 1, assignment problem. assignment problem क्या होता है? अगर वन लाइन मीनिंग में समझा जाए तो ए स्पेशल केस ऑफ एलपीपी that deals with assigning resources to task in an optimal way, and it used in workforce allocation, जॉब शेड्यूलिंग एंड लॉजिस्टिक्स। देन आता है हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड क्या है? दिस इज एन एल्गोरिथम डेवलप्ड बाय हैरोल्ड कून इन 1955 टू सॉल्व वेरियस असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली, एंड इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग कॉस्ट और मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी। हंगेरियन मेथड के वजह से कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, राइट। देन नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये क्या है? एन असाइनमेंट प्रॉब्लम वेयर द नंबर ऑफ टास्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिसोर्सेस। इसको कहते हैं बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, and it ensures feasibility without modifications। और फॉर्मूला क्या होगा? टोटल सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, टोटल डिमांड, राइट। टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। और ऑन बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है? when the number of tasks is not equal to the number of resources requiring a dummy row or column to balance it, right, and it used to ensure valid assignments, and for that reason we need to add a dummy row or column with zero cost to make it equal, right। और ये जो अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है, यहाँ से क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्व करने को रिक्वायरमेंट होता है, एंड अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम होगा तो when the number of tasks is not equal to the number of resources requiring a dummy row या फिर dummy column to balance that assignment, right, and it used to ensure that there is a valid assignments, so for that reason we need to add dummy row or column with zero cost। then आता है cost matrix। ये क्या है? this is a square matrix that represent the cost of assigning resources to task, and applicability importance क्या है? it is a basis for solving assignment problems, that's it। then optimization। optimization means finding the best possible assignment that minimize cost or maximize profit, and it ensures efficient resource utilization। देन आता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्या है? द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू मिनिमाइज कॉस्ट और मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एंड इट यूज्ड इन एलपी फॉर्मुलेशन। और फॉर्मूला क्या है? मिनिमाइज जेड इक्वल टू समेशन ऑफ सी आई जे इंटू एक्स आई जे, वेयर सी आई जे इज द कॉस्ट ऑफ असाइनिंग टास्क आई 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 टू रिसोर्स जे 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 टू रिसोर्स आई आई आई। ये है फॉर्मूला, राइट। देन आता है कांस्टेंट इन असाइनमेंट प्रॉब्लम। ensure that each resource is assigned exactly once and each task is completed exactly once, and it ensures a valid assignments। sigma xij is equal to 1, each row column sums to 1। देन आता है मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये क्या है? दिस इज ए प्रॉब्लम where profit is maximized instead of cost being minimized। it used in sales and revenue optimization, and formula क्या होगा? convert maximization to minimization,
और रिग्रेट मैट्रिक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, और रिग्रेट मैट्रिक्स का फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस गिवन वैल्यू। देन आता है रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट। ये क्या है? दिस इज अ सिनेरियो वेयर सर्टेन असाइनमेंट्स आर नॉट अलाउड और it handled by assigning a very high cost m or infinite to those cells and set restricted cost to m, right? Then traveling salesman problem. Traveling salesman problem क्या है? A special case where a salesman must visit all cities exactly once before returning to the starting point, and it used in logistics and route optimization, and then multiple optimal solutions. ये क्या है? When more than one assignment gives the same optimal result and it provides alternative solutions. It provides alternative solutions, right? So these are some important terms in assignment problems. We need to understand all such things, all such important points, and अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा तो ये असाइनमेंट का जो प्रॉब्लम है वो हम एग्ज़ाम में आराम से सॉल्व कर पाएंगे, राइट? और मैंने यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब ऐड किया हूँ। और जैसे कि बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, ऑन बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, राइट? देन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, देन कॉन्स्टेंट इन असाइनमेंट प्रॉब्लम, देन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम TSP, राइट? सो ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से रीड करना है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितने भी लास्ट 5 इयर्स में आए थे असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चन वो सब प्रैक्टिस करना है, सो दैट कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support, and happy studying.